ब्रेस्ट फीड से पहले मदर कई बार अल्कोहल लेती हैं, तो क्या बच्चे भी नशे में हो जाते हैं? हो सकता है. All the drugs, whether it is crocin, whether it is alcohol, whether it is cocaine, whether it is nicotine, everything goes in the breast milk. If you add smoking, your risk for getting a heart attack in next 10 years goes up by 50%. And we have a definite evidence of what we call fetal alcohol syndrome. These kids are mentally retarded. क्या हमारे बोन्स के लिए बच्चों का मसाज करना या इतना ऑयलिंग करना ठीक है? मैं रेजिडेंसी कर रही थी तो वन ऑफ द किड्स एक्चुअली डाइड. हमारे पास बच्चे आए हैं जिनका रेडियल बोन वाज आउट ऑफ द जॉइंट. व्हाई? बिकॉज कोरोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होंगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, क्लॉट बनेगा, बूम, हार्ट अटैक. एक ना शायद बहुत बड़ी मिथ है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं. So in teenagers there is a lot of trend for makeup and I usually denounce that. What is the right age for a parent to get pregnant? The best time, anytime the age goes above, the fetus will abort even before it implants. Misinformation and disinformation about this is good for my child, giving protein powder to a 4-year-old is something I don't recommend. आप ये कहते हो कि 15 मंथ से पहले बच्चों को पॉटी ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. No. वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका राज. डॉक्टर सारिका इज अ कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक्स एंड एडोलसेंट मेडिसिन with 35 years of experience. After completing her MBBS, her medical journey took her across different countries. She trained at the University of Cardiff in United Kingdom, completed her pediatrics residency at the University of Massachusetts in USA. Dr. Sarika has been certified by the American Board of Pediatrics since 1997 and also has been a fellow of the American Academy of Pediatrics since then. Before returning to India in 2007, she worked for more than 10 years at two leading group practices across United States. Later, she established and became the face of Department of Pediatrics at Artemis Hospital, Gurgaon. Through her hard work and quality of care, the newly opened center was flooded with patients within just 6 months. Currently, she practices at her own clinic in Sona Road, Gurgaon. Medicine is not just Dr. Sarika's profession. It's a part of her family culture. Her husband, Dr. Vivek Raj, is a well-known gastroenterologist and hepatologist, and he is currently serving as a principal director and HOD at Max Hospital, New Delhi. Dr. Sarika's approach is not limited to just treating illness. She strongly believes in the overall health and holistic development of children, adolescents, and young adults up to the age of 21. She has special expertise in developmental assessment, learning difficulties, and psychological and physical health of children and teenagers. And all because of this, children see her as their best friend and best supporter as she understands their problem very easily. During her 20 years of practice in Gurgaon, she has earned the trust of thousands of families. Along with treatment, she focuses a lot on educating parents so they can stay informed about their child's health and can make confident decisions at the right time in the overall growth and development. वेलकम मैम. Thank you for inviting me, Rishi. कैसे हो मैम आप? बढ़िया, I'm very good. बच्चे आजकल परेशान तो नहीं कर रहे? आजकल तो नहीं कर रहे. पिछले 2 महीने तक तो बहुत किया था. अब हमारा थोड़ा क्वाइट फेज आ रहा है. अच्छा, ये क्वाइट फेज जाता है. मुझे तो लगा ठंड में ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों नहीं, चेंज ऑफ सीजन में होती है. जब आप 12 डिग्री से आप 24 डिग्रीज पे जाते हो स्टार्ट ऑफ फेब्रुवरी, तो तंग होते हैं हम. और जब 44 डिग्री से 34 डिग्री पहली दूसरी बारिश के बाद तब हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं. अच्छा, दोज आर माई बिजी सीजन्स. मैम कौन सी ऐसी मेजर गलतियां हैं जो आज पेरेंट्स कर रहे हैं जो कि लॉन्गर रन में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है? इस समय तो मेजर जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो लाइफस्टाइल की चल रही हैं. सो आजकल के पेरेंट्स जो हैं, 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं. हेल्थ रिलेटेड इज़ व्हाट आई कैन डिस्कस. फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स. There is a major culture of obviously processed food because of hectic lifestyle.
यंगर किड्स में पेरेंट्स शाम को दौड़ भाग के घर आ रहे हैं, बच्चा शोर मचा रहा है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, दे गिविंग इन टू ऑल दिस. सो micronutrients, macronutrients, the balance of nutrition, everything is affected. And the outcomes that I'm seeing in clinic are my youngest patient who's on sugar-free diet because of high A1C is 4-year-old. Now, a 4-year-old does not make a decision कि मैं क्या खाऊंगा और मैं कितना खाऊंगा. ओबेसिटी तो आप देख रहे हो, इट इज बहुत कमिंग बढ़ रहा अप. है यस, इंडिया में तो. बच्चे को जूस इंस्टेड ऑफ फ्रूट दे गिविंग जूस, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट, हाई शुगर कंटेंट. And besides this, cholesterol. I mean, I'm seeing high cholesterol in kids as young as 7, 8, 9 years. These are all lifestyle diseases. Second problem that I'm seeing is they're not teaching their kids how to self-feed. वो एक मेड है, वो खाना कटोरी और चम्मच लेके बच्चे के पीछे भाग रही है, बच्चा इस एंड से उस एंड, उस एंड से उस एंड. So they're not teaching the kid how to eat. That can only happen if they're sitting in a family setup around a table and everybody is eating and talking. That does not happen because of lifestyle. Maid बच्चे को खाना खिला रही है, पेरेंट्स रात में 11 बजे आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं. एक तो ये प्रॉब्लम है. टीनेजर्स में screen has become an issue. I am starting to diagnose high blood pressure in kids as young as 17, 18 years old. Sleep, screen time, sleep, and social media is another thing that I am seeing has a major health impact in kids these days. When you guide and counsel these parents, they will definitely try to follow through. बच्चों को स्पोर्ट्स में भी भेजेंगे, शुगर भी बंद कर देंगे, but that is not sustained. Short attention span. The parents have short attention span towards and repeated advice. And thirdly, misinformation and disinformation about this is good for my child. Giving protein powder to a 4-year-old is something I don't recommend. पेरेंट्स को लग रहा है कि अगर आप उनको प्रोटीन दोगे तो ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा फिट होंगे, Yes. बट वही बैकफायर कर जाता है. वो backfire कर जाता है. And parents are not modeling good behavior. Smoking, alcohol, when it's happening I will at come to home that as late well. at night, Yes. that is not a good model behavior for the child. Earlier, the smoking and alcohol used to be limited outside home. Now we have alcohol vents at every corner, at least in the town that I live in. And it is very easy to buy good quality wine and good quality alcohol and take it at home and party at home. I mean, these are some of the behaviors that the child should not be picking up. I have had a couple of kids who went into substance abuse as young as 14, 15 years of age. And when I brought the problem up with the parents, they had a fight. Because mom, when she came back home, she had to have her drink. You can't stop the child from having a drink at 14 years because that is what he has learned. Yes. Ki when you are stressed, take a drink and it'll chill you out. So now the exam time is coming. I went out with my friends. I had a drink. What is the problem? Yes. ब्रेस्ट फीड से पहले मदर कई बार अल्कोहल लेती हैं, तो क्या बच्चे भी नशे में हो जाते हैं? हो सकते हैं. हाँ. एक्सप्लेन. अगर मदर जो भी खा पी रही है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, everything is going into the breast milk. How? Because it goes into your bloodstream. Milk कैसे बनता है? The nutrients are drawn from the bloodstream. All the drugs, whether it is crocin, whether it is alcohol, whether it is cocaine, whether it is nicotine, or whether it is alcohol, everything goes in the breast milk. So yes, the child is getting it. And actually, if you look back in pediatrics, if this mother is drinking during breastfeeding, she was also possibly drinking during pregnancy. And we have a definite evidence of what we call fetal alcohol syndrome, which comes from maternal intake of alcohol during pregnancy. These kids are mentally retarded. These kids have a very classical features. They can turn out to have
if they are not mentally retarded, they will go on to have learning disorders because it does affect your brain cells. If you're smoking at your place, is it good for your child? No, Or we should not do this? no. So passive smoking has been defined as a cause of cancer. Passive smoking क्या होती है? घर में कोई smoking कर रहा है, somebody is smoking at home. The pollutants, the components are in the air, and the rest of the family members are inhaling them. Or a lot of times, you know, you're smoking and the kid is sitting next to you. Yes. The kid is passively smoking the smoke. And they may not get the enough nicotine to get the high for it, but they get all the other carcinogens into their lungs. And we do have scientifically recorded cases of cancer that came out of, and you know, nicotine is also implicated in heart attacks. And in fact, yesterday, one of the patients that I've seen for a very long time, he came by and his blood pressure was high. And he was smoking. Earlier he was vaping. Now I could smell the smoke of him. He's now 20 years old. Parents can't say anything to him. And when I looked at his cardiac labs, they were all abnormal. So this is a typical child that I'm trying to protect from heart attack at this point. So, and smoking is considered an independent risk factor for heart attacks. आप और कुछ चेंज नहीं करो, अपनी डाइट चेंज नहीं करो, लिपिड प्रोफाइल को वहीं रहने दो. If you add smoking, your risk for getting a heart attack in next 10 years goes up by 50%. Because it has a direct effect on arteries, coronary arteries. Coronary arteries constrict होंगी, वहाँ inflammation होगी, clot बनेगा, boom, heart attack. What is the right age for a parent to get pregnant? The best time for a woman to get the women eggs to get pregnant are usually around between 22 and 29, 30. Anytime the age goes above 32, there is deterioration of genetic component of the egg. So increasingly ladies are busy getting their professions in order, doing late marriages. And in Western world, some of these women who are busy with their careers, they actually take their eggs when they are young and freeze them and get them artificially inseminated. India, I don't know a lot of women are doing that. But any woman who gets pregnant beyond 32 years, we do look at their genetic, they undergo special testing to make sure the baby is not genetically malformed in any way. Right. और सही है कि अगर आपने टाइम से अगर वो सब टेस्ट करा लिया ना, तो लॉन्गर रन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मिसकैरेजेस भी बहुत होने लग गए. राइट. तो वो सब चीज़ें सेफ हो जाएंगी. फीटल खराब क्यों होता है? About 60% genetic causes होते हैं, and these causes cannot sustain a pregnancy or a normal human being, and these are constant the what we call mutations that are undergoing with our genetic material because of different factors around us. The younger eggs will have fewer mutations, older eggs will have more mutation. And if there is a mutation that is not capable with life, the fetus will abort even before it implants. So the fertilization happens a lot more frequently than the number of babies that are being born, right? The others would be any inherited diseases. Inherited diseases जैसे आपकी अगर family में कोई problem है, that would lead to again changes in the genetic makeup, और फिर बच्चा जो है वो ठीक नहीं निकलेगा. Alcohol, smoking, all these lifestyle things are actually सब चीज़ों को implicate किया हुआ है, directly or indirectly. All these will cause damage to the fetus. अगर वो fetus अच्छा नहीं है और वो मैच्योर भी हो जाता है, बेबी बॉर्न भी हो जाता है, तो लॉन्गर रन उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है. अब जैसे अगर ब्रेन पे प्रॉब्लम है, कुछ अगर जैसे बड़े मेजर म्यूटेशन हो गई है जीन पे, तो दीज किड्स आर बॉर्न विद स्पेसिफिक सिंड्रोम्स, जैसे ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा बड़ा कॉमनली. दीज किड्स, इनको
काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेलिजेंस लेवल लो होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, एटलांटोएक्शियल जो नेक में जो जॉइंट्स हैं उसमें वो बड़े आराम से स्लिप कर सकते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, ल्यूकीमिया एंड ऑल. सो आगे चल के डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिफेक्ट है बच्चे में, उसके बेसिस पे एनी सिस्टम कैन बी इन्वॉल्व. इट कुड बी समथिंग वेरी माइल्ड कि आपकी एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई और आपको थोड़ा सा रिफ्लक्स ज़्यादा हो गया, या एक छोटी सी किडनी मेलफॉर्म हो गई, दूसरी ठीक है. दोज थिंग्स कैन हैपन. बट वेयर विजन एंड हियरिंग इज़ अफेक्टेड, ये बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, दे हैव ट्रबल विद लर्निंग इन स्कूल, पीछे रह जाते हैं. देन स्टार्ट्स द इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड देन स्टार्ट्स रिहेबिलिटेशन. सो देर आर lot of things that happen to kids who are somehow managed to survive. मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले जो डिफेक्टिव बेबीज होते थे ना, जो हाँ. मुझे ध्यान है, मतलब नाउ आई एम 30, अराउंड 30 के लो, पहले ना एक ही चीज़ दिखता था कि बच्चा विकलांग होता था. हाँ. समहाउ उसके या तो पैर काम नहीं कर रहे होते थे, हाथ कटे होते थे या छोटे होते थे, या कोई ऐसा बॉडी पार्ट हाँ. ग्रो नहीं किया होता था. बट बाकी चीज़ें ठीक रहती थी, आँख कान नाक जो मेन ऑर्गेन्स है ना, वो सब ठीक रहते थे. बट आजकल इतने तरीके के प्रॉब्लम्स आ गए हैं. आप लिफ्ट में आते जाते, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 में से 2 बच्चा तो डैमेज्ड है किसी ना किसी वे में. वो आपको एबनॉर्मल दिखेगा, कोई मशीन लगा के घूम रहा है, कोई अजीब सा बिहेव कर रहा है. ये नॉर्मल नहीं है. मतलब वो बच्चे देख के हमको समझ में आ जाते हैं कि यार दे आर नॉट नॉर्मल. ये इतना क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स जो अभी क्लियर साइंटिफिक some studies have supported it, कि environmental factors, what we call chemicals in our environment, pesticides हैं, rat poisons हैं, these directly or indirectly, if they enter the body system, it causes endocrine disruption. And endocrine disruption मतलब आपके जो normal endocrine function है वो affect हो जाता है. And besides the genetic, environment can be a factor. So living in a stressful environment, even that has been implicated. Some of these factors are also causing abnormalities in kids. अगर आप 2 out of 10 देख रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा है, आपकी सोसाइटी में कॉन्सेंट्रेटेड होंगे. एंड वेन एवर वी सी दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, we actually recommend looking at the environmental factors. जैसे आसपास कोई केमिकल्स की फैक्ट्री है या कुछ है, उसको फॉलो करिए. बट नॉर्मली इंसिडेंस ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स लीडिंग टू एबनॉर्मलिटी इज मच लोअर in the population. But most of the statistics I have is from US. I mean, don't quote me on it, but मेरे ख्याल से तो we're looking at anywhere from 5 to 7 kids out of 1,000. हाँ, 5 to 7 kids out of 1,000 who would be abnormal in that sense. Now, things like asthma, things like minor treatable causes. तो treatable causes को हम birth defects में नहीं count करते हैं. Speech delays, autism, Yes. aggression, Yes. ये सब बहुत common हो गया है. थोड़ी तो diagnosis improve हुई है. अगर आप पहले जो होते थे, जो सोसाइटी में वियर्ड इंडिविजुअल्स होते थे, ठीक है, दोज वर हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक पीपल, एंड यू विल सी काफ़ी एडल्ट्स these days when they're not able to fit into their workplace, but they learn normally because they have normal intelligence, but they were slightly weird in school. ये लोग सब later on have a diagnosis of ADHD or autism. तो earlier इसकी understanding नहीं थी इतनी. There is a lot of research that has gone into autism, ADHD and behavioral problems. We've realized that early intervention is कि जितनी जल्दी diagnose करो और उसी के हिसाब से बच्चे को special ed, OT, PT, speech, ये सब अगर early on दे दो तो you see these people are better adjusted into the societies. So incidence पहले भी था, अब भी है. Is there a small increase in the incidence? The scientists in US are saying कि there is a definite increase in the incidence, and some of it is also related to lifestyle. अब speech delay आप देखिए, speech therapist कितनी आ गई हैं सोसाइटी में, ठीक है. अब वो स्पीच थेरेपिस्ट को बिजनेस चाहिए,
वो अपने आप को प्रोपेगेट करेंगी कि अगर आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है तो आप मेरे पास लाओ, मैं आपके बच्चे की स्पीच ठीक कर दूंगी. They also need business. They also need business. I mean, partly it is, it's propagated out of the need. So I think better diagnosis. And I do agree. मतलब hearing हम भी improve कर रहे हैं. As a doctor हमारी understanding improve हो रही है. So that is where we are. मसाज करने से बच्चों का स्किन सेंसिटिव हो जाता है, और क्या हमारे बोन्स के लिए बच्चों का मसाज करना या इतना ऑयलिंग करना ठीक है? देखिए, ऑयल बोन्स तक तो नहीं पहुंचता है. वेरी ट्रू. है ना. मसाज करके बच्चे को सेंसरी इश्यूज में फ़र्क पड़ सकता है. जब हम मसाज करते हैं बच्चे को सेंस हो जाता है सारी बॉडी टच हो रही है. वैसे अगर वो चुपचाप सो रहा है तो वो वही पार्ट टच हो रहा है जहाँ पे वो लेटा हुआ है. Right. है ना. बाकी पार्ट इज नॉट बीइंग टच्ड. लेकिन जहाँ पे हगिंग, किसिंग, मतलब बच्चे को होल्ड करना और बॉडी से लगाना, ये सब फैक्टर्स हैं विच टेंड टू इम्प्रूव इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. सो मसाज, यस, लोकली अगर बहुत ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग हो जाती है उससे. सो देर आर डेफिनेटली बेनिफिट्स टू मसाज. प्रॉब्लम कहाँ है मसाज में? जहाँ पे बहुत विग्रस मसाज कर चुके. हमारे पास बच्चे आए हैं जिनका रेडियल bone was out of the joint. Why? Because the massage lady pulled the hand too much. So जो मसाज कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों का कैसे करना है, क्योंकि बच्चों के जॉइंट्स अडल्ट जॉइंट से बिल्कुल अलग होते हैं. और मैंने नॉर्मली देखा है ना कि वो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब मसाज करते हैं. वो मेरे को ध्यान आ रहा है. हाँ, एग्रेशन की जरूरत नहीं है. एग्रेशन, जेंटल मसाज. हाँ, जेंटल मसाज फॉर बोन और फॉर स्किन. हाँ, और जो डीप प्रेशर होता है ना, डीप प्रेशर और एग्रेसिव प्रेशर में अंतर होता है. तो सम प्लेसेस यू कैन डू डीप मसाज, सम प्लेसेस यू शुड नॉट बी डूइंग डीप मसाज. कहाँ पे वी कैन डू डीप मसाज? मतलब जैसे आर्म्स एंड लेग्स में, जैसे लिम्स में यहाँ कर सकते हो. पेट पे आप डीप मसाज नहीं कर सकते, जेंटल ही होगा. स्पाइन पे, हाँ, हेड पे आप विग्रस मसाज कर सकते हो, लेकिन छोटे बेबीज में सॉफ्ट स्पॉट होता है. वही एग्जैक्टली. मेरे को हाँ, लग रहा है तो 3-4 साल तक तो वो ब्रेन बन ही रहा होता है. नहीं, तो वो जो स्पॉट्स हैं वो आपके 18 महीने तक बंद हो जाते हैं. Okay. तो 2 साल के बाद आप हेड पे विग्रस मसाज कर सकते हो. एक ना शायद बहुत बड़ी मिथ है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं. वो गलत है. आंखों का जो शेप और साइज होता है वो जेनेटिक होता है. आप माँ बाप को देख लीजिए और बच्चे की आंख देख लीजिए, सेम ही होगी. काजल से जो मेजर प्रॉब्लम होती है, ये जो टीयर डक्ट होते हैं जो अंदर की तरफ टीयर्स को ड्रॉप करते हैं नोज़ में, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट हम उसको बोलते हैं, वो बंद हो जाती है. कई बार ब्लॉक हो सकती है. तो मैं तो सबको कहती हूँ, आपको टीका लगाना है तो माथे पे लगाओ, प्लीज़ आइस पे मत लगाओ. अर्लियर जो काजल बनता था उसमें लेड होता था. So it became a major source of lead. It became a major source of eye discharge, infection in the eyes. So आँख में काजल तो नहीं, but हाँ, आजकल as older women they put eyeliners and mascaras. So that is good. That is not good. That is not natural. But you know, हाँ. Okay. At least your eyes are fully developed by the time you're starting to put those things. So in teenagers, there is a lot of trend for makeup. And I usually denounce that. Let them go through college, light makeup, and learn how to appreciate your beauty, which is without makeup. Your teenagers का जो core build हो रहा है कि I am good and I am capable even without the makeup. I don't have to hide behind. वो confidence की बहुत ज़रूरत है, मैम. So if you take the makeup away, the focus is on the core strength building of the teenager, which is required before they hit the world. किस एज में आप मैं allow करते हो makeup 14 and 18, I usually tell parents कि the child is trying to understand themselves कि what is my place in this world? What is my place in my peer group? What is my place? How am I going to tackle the world, which is big and scary? But for that, I need to understand myself, because they have so many options for professions. आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको फाइनेंशियल बनना है. They have plenty of options. And that is the time the child is trying to reassess, मुझे क्या अच्छा लगता है. And also the schools are guiding them towards career counseling and all those things. So आपकी strengths के basis पे they're guiding you. Now,
there is a lot of self-doubt. And to Yes. remove the self-doubt, a lot of girls get into looking good. Yes. I can be influencer, I can be, but these are the kids who are going on and having mental health issues as they hit college, when the reality hits them. So I don't recommend using makeup 12 up to तक कह लो 18. आपकी। हाँ, 12 तक जब तो तक आप बिल्कुल। 12th में हो प्लीज हाँ। डोंट अप्लाई मेकअप। Yes. आप अपनी You नेचुरल have ब्यूटी को एंजॉय natural करो। beauty. Teenagers have such natural skin and natural beauty. Focus on health. Focus on mental health. Focus on core building, core strength building, emotional building. मैम कौन सी एज के बाद हम लोग मिल्क के अलावा कुछ और बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, फर्स्ट 6 मंथ्स तो हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क या हाँ। फॉर्मूला रेकमेंड करते हैं। अब काउज मिल्क हम नहीं रेकमेंड करते हैं। उसका रीज़न है, काउज मिल्क हैज़ बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन अमीनो एसिड दैट हेल्प्स विद द आई डेवलपमेंट, एंड आई डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। इसको हम लेसिथिन बोलते हैं। सो एंड ऑल्सो इट इज़ डेफिशिएंट इन आयरन एंड विटामिन सी एंड सम अदर कॉम्पोनेंट्स। सो द फार्मूला में हमने ये सब चीज़ें हटा दी हैं और एडिशनल चीज़ें डाल दी हैं। सो फार्मूला बिकम्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। Between 6 and 12 months, the kids' gut enzymes need to be stimulated with the solid food. The solid food stimulates the gut enzyme, but the primary growth still happens from breast milk or formula. There is a certain amount of milk, which is breast milk or formula, should be going into the baby as per the age. The solid food that we start at around 6 months, initially तो बिल्कुल प्यूरीड देते हैं हम लोग। प्यूरीड फूड में यूजुअली आई वुड रेकमेंड कि आप जो नेचर का बनाया हुआ फूड है, दाल है, सब्जी है, चावल है, इसको घर पे ऑथेंटिकली कुक करके एक चटनी ब्लेंडर में ब्लेंड करके, बिकॉज इस समय बच्चों का स्वॉलोइंग भी इम्प्रूव हो रहा है, ओरोमोटर फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है, तो आप जितना उसको इंट्रोड्यूस करोगे वो सॉलिड फूड चटनी के फॉर्म में खाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली प्यूरीड। एंड एज द चाइल्ड्स ओरोमोटर फंक्शन इम्प्रूव्स, he will start to show a chewing action of the mouth. आपने माउथ में डाला तो वो अब टंग से उसको, पहले क्या करते हैं, आपने डाला वो निकल गए, ठीक है, 6-7 महीने के आसपास वो उसको टंग से मैनिपुलेट करेंगे, आपको दिखेगा एंड आँखें भी सडनली ही स्टार्टिंग टू फील द टेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ द फूड। दैट इज द टाइम आई से इसको थोड़ा सा चंक बड़ा कर दो, so he can chew with his gum at that time, he or she. Some of the very smart babies जिनका ओरोमोटर फंक्शन स्मार्ट होता है, वो बाबा मम्मा डाडा 9 महीने पे शुरू हो जाता है, बट एट द सेम टाइम दे आर पिकिंग अप फूड एंड च्यूइंग, तो वो दोज आर अर्ली चूअर्स। जिन बच्चों को स्टमक रिफ्लक्स होता है वो जल्दी च्यू नहीं करते हैं, उनको 18 महीने तक कई बार हमें प्यूरीड फूड देना पड़ता है। तो प्यूरीड फूड जो हम देते हैं, मैं बड़ा डेफिनेटली कि मोस्टली मिल्क एंड 20 tablespoons of solid food maximum in a day, that does beautiful growth in these kids. After 1 year, most kids are speaking 1 or 2 words, oromotor function आ गया है। इस समय आपकी जो नॉर्मल डाइट है, जो आप घर में खाना खाते हो, जो आप दाल रोटी सब्जी खाते हो या चिकन मटन खाते हो, वो सब इस स्टेज पे बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और बच्चे को 9 months पे मैं सेल्फ फीडिंग डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चा पहले ना फूड को देखेगा, आप उसके सामने खाना रखोगे, आप चम्मच से खिलाते रहो, लेकिन ही नीड्स टू प्ले विद द फूड। व्हेन द चाइल्ड इज फीडिंग, द फोकस शुड बी ऑन फूड and chewing. It should not be on a screen. It should not be on something. You can play a music in the background, but somebody needs to supervise. Choking हो सकती है, बच्चा जबरदस्ती ठूस लिया खाना मुंह में, उसको पता भी नहीं हाथ का मूवमेंट कैसे करना है। हाँ, वो सारे में गिरेगा। वो नहीं, वो सिर्फ यही नहीं करते हैं, वो पानी नीचे गिरा के देखेंगे, वो खाना नीचे गिराएंगे, उतरेंगे, कहेंगे उतारो उतारो उतारो, फिर उसको पैर से क्रश करके देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द प्ले स्टेज, जिसमें सॉलिड फूड के साथ पहले वो लोग खेलते हैं, वो लोग कंफर्टेबल होते हैं, एंड वहीं से उठा के खाने की भी कोशिश करते हैं। होएगा वो, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए।
इन सब एक्टिविटीज़ के बाद ग्रेजुअली 15-16 मंथ्स पे ये लोग उठा के खाना शुरू करते हैं. तो दे एक्चुअली असिस्ट यू इन फीडिंग देमसेल्व्स. And by 18 or 19 months, most of the babies who come to my clinic are sitting on a table. They are feeding themselves with a spoon. तो one of the things I tell parents is कि self feeding की stage अगर आपने 9 months पे introduce नहीं की और आप 4 साल का बच्चा आपका मेड खाना लेके पीछे दूर रही है क्योंकि बच्चे ने कभी खाना नहीं सीखा, उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो बच्चा वो प्ले की स्टेज से जाएगा. 4 साल का बच्चा का खाना उठा के फेंकेगा, आपको शर्म आएगी, है ना. वो स्टेज पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. दूसरा, वो उसको खाने का टेस्ट नहीं पता है. जब तक वो अपने आप उठा के नहीं खाए, उसका जो पेट में उसको कितनी भूख है ये आपको वो वर्बली नहीं बता सकता. तो व्हाट हैपन्स इज मोस्ट ऑफ द ग्रैंड मदर्स हु आर फीडिंग द किड, दे आर ओवर फीडिंग द किड. अरे ये इतना सा बच्चा है, इसको खिला दो. ओवर फीडिंग भी बहुत हैम्पर करता है. हाँ, ओवर फीडिंग में आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे को ये कह रहे हो कि तुम्हारा जो सटाइटी सेंटर है ना उसको इग्नोर कर दो. डोंट फॉलो योर सटाइटी सेंटर. एंड रिपीटेड ओवरराइडिंग ऑफ द सटाइटी सेंटर, व्हाट डज इट डू? You never get hold of that satiety center. You don't understand that feeling in your brain. So as an adult, when you're distressed, whenever the food comes, you're eating it. What happens? This is what leads to obesity epidemic. तो दादी नानी जो हमारी जबरदस्ती खिलाती है, उनको मना कर देना चाहिए. उनको मैं तो ये कहती हूँ कि आपको लग रहा है कि खाना वेस्ट होगा, आप उसको फ्रिज में रख दीजिए. वेस्ट होगा नहीं, मतलब कई बार ना उनका इंटेंशन ऐसा रहता है कि मेरा बच्चा भूखा है. हाँ, बट दे कांट टेल. एंड मोस्ट ऑफ द बेबीज आर स्मार्ट इनफ टू गिव यू क्यूज कि मुझे और नहीं खाना है. अगर बच्चा ये कह रहा है तो प्लीज सुनिए उसको नहीं खाना है अभी. और यूजुअली क्या होगा, अगर हम they can't express, but they don't want to eat right away because I'm very busy with my toy. 20 minutes later, I'll be howling because you did not give me my food. Now, when the child is done with the toy, you offer again. And if he's hungry, he'll eat it. So, मतलब बच्चा खुद से सिग्नल देता है कि मुझे खाना खाना है या नहीं खाना है. उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. और डेफिनेटली एक बार ना हो गया, बाकी खाना बचा है तो उसको हटा दीजिए. अच्छा, वो खाने का फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहिए एक छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों को क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी कई बार मदर्स बहुत ज़्यादा कर देती हैं. तो मिल्क जो होता है वो हम कहते हैं 28 to 32 आउंसेस जाना चाहिए. अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फॉर्मूला ऐड करिए. और अंडर अप टू 9 months इट इज़ यूजुअली 10 tablespoons ऑफ सॉलिड फूड से ज़्यादा नहीं चाहिए. टेबल स्पून वो होता है बड़ा वाला चम्मच, इट्स रफली अबाउट 15 ml. तो 150 ml से ज़्यादा सॉलिड नहीं चाहिए. आपके पास 50 ml का कटोरा है, 3 मील से ज़्यादा नहीं चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द चाइल्ड. अगर आपका चाइल्ड 2 ही चम्मच खा रहा है तो आप 5 बार सॉलिड फूड दे सकते हो. अगर वो 3 बार खा रहा है तो आप 3 दे सकते हो. अगर 5 चम्मच खा लिए उसने तो 2 ही बार दो, बाकी टाइम दूध दीजिए. 9 महीने के बाद गट एंजाइम्स मैच्योर हो जाते हैं. आई रेकमेंड 20 tablespoons इन एडिशन टू योर मिल्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सॉलिड को बढ़ा सकते हैं. आफ्टर 1 year 600 ml दूध इज गुड इनफ. दूध एंड दही in any form is good enough for your bone growth, for your protein growth. And this is the time oromotor function और develop हो रहा है. हम बातें करना शुरू कर रहे हैं, हम टंग यूज़ करना शुरू कर रहे हैं. तो उस स्टेज पे उनको खाना देना, सॉलिड खाना देना बहुत ज़रूरी है. जो 1 से जो टॉडलर एज है ना 12 months to 24 months, उनको टिपिकली वी से दे लाइक फिक्स्ड मील आवर्स. उनको पता है कि इस टाइम मेरे को खाना मिलेगा, इस टाइम मुझे नैप मिलेगी, इस टाइम मैं बाहर जाऊंगा खेलने के लिए, और कौन जाएगा मेरे साथ वो भी उनको पता होता है. सो उनकी मील टाइम के टाइम प्लीज़ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मत लीजिए, आप और काम मत करिए, है ना. उनकी मील टाइम्स पे देयर इज़ अ हेल्प हु इज़ गॉटन हिज फूड रेडी सो ही कैन ईट इट. नाउ इस एज पे हम मील की अपर लिमिट फिक्स नहीं करते हैं because the baby is able to communicate adequately कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं खाना है. And usually milk हम कहते हैं किसी भी फॉर्म में, अगर वो सिर्फ 100 ml पिएगा तो 6 बार दे दो. अगर वो 250 पी लेगा तो आप 2 या 2.5 बार ही देना, है ना. तो आपको टेलर करना है कि बच्चा कितना पी पा रहा है, उसके हिसाब से दीजिए. तो
It's only the milk that I would usually say कि put a limit to it. बाकी in terms of क्या देना है खाने को, ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे. कितना खाना है वो टॉडलर डिसाइड करेगा. खाने के बाद बर्पिंग कराना चाहिए बच्चों को? नहीं, हम सिर्फ छोटे बेबीज की बात कर रहे हैं. वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स टू सिट अप, वी डोंट रेकमेंड. नहीं, मैं छोटे बच्चों की पूछ रहा था. हाँ, छोटे बच्चों को because when they are swallowing, because swallowing is not very mature, they're breathing and swallowing, the coordination is happening. So a lot of babies tend to swallow a lot of air with it. And when they swallow that air, it actually creates a big bubble in the stomach and their milk intake can be reduced. So we hold them upright, तो क्या होता है, air bubble ऊपर आ जाता है. उसको जब आप बर्प करोगे, वो air bubble रिलीज होता है, बाहर निकल जाएगा. हाँ. And the child will often, you will see if the child goes गुड़ुप निकल गया, अब वो फीड और मांग रहा है, तो आप दे दीजिए. मैम, मिल्क से कॉन्स्टिपेशन होता है? मिल्क से तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता. बच्चों की मैं बात कर रहा. हाँ. ओके. इवन इन फैक्ट अगर बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो लूज स्टूल्स होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द कॉज. नाउ कॉन्स्टिपेशन, मिल्क फीडिंग बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कहाँ से आता है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ. व्हेन द चाइल्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन मिल्क, जब भूख लगी दूध दे दिया, भूख लगी दूध दे दिया, क्या नहीं गया? सॉलिड्स नहीं गए, फाइबर नहीं गया. फाइबर इज व्हाट स्टिमुलेट्स गट मोटिलिटी. यस, दोज किड्स गेट कॉन्स्टिपेटेड. इसलिए अपर लिमिट ऑफ मिल्क हम मेंटेन रखते हैं टॉडलर एज ग्रुप में कि इससे ज़्यादा मिल्क मत दो. एक छोटे बच्चों को कब से हम लोग ब्रशिंग शुरू कर सकते हैं? सो देखिए, एंड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है उनके लिए? हाँ. सो cleaning of teeth and brushing, if you take it as two separate things, yes, but the cleaning of teeth should start as early as the first tooth appears. Okay. The bottom two teeth appear, I usually say एक wet rash, हाँ, खरगोश दांत. आप एक wet washcloth लीजिए, and the biggest cause of dental caries is the milk. बच्चा रात में दूध पिया, बॉटल मुंह में, सो गए, दूध लगा हुआ है. That milk tooth needs to be cleaned with simple washcloth, wet washcloth rubbed on the front and back of the teeth. As they get a little bit older, ज़्यादा दांत आ गए हैं, आप इन्फेंट फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो. यूजुअली 15 to 16 months पे मैं फर्स्ट फ्लोराइड इंट्रोडक्शन कर देती हूँ. इफ़ यू हैव अ वेरी गुड डेंटिस्ट इन टाउन, वो फ्लोराइड एप्लीकेशन भी कर देंगे आपके बच्चों को टू प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम केरीज. ट्वाइस अ डे ब्रशिंग आफ्टर 1 year is highly recommended. It should actually be done and I instruct the patients to do that. 15 महीने पे मैं वो पीडियाट्रिक टूथपेस्ट आता है ना, कॉलगेट किड, जिसमें थोड़ा फ्लोराइड लेवल कम होता है, उसको मैं कहती हूँ ट्वाइस अ वीक दांतों पे फ्रंट एंड बैक रब कर दो. जब पीछे के दांत आ गए, 4 मोलर्स आ गए, है ना, दैट इज द टाइम ही इज नॉट गोना लेट यू पुट योर फिंगर इन द माउथ टू क्लीन. हाँ, बाइट करेगा. तो दैट इज द टाइम यू नीड दैट. वो फ्लेक्सिबल सिलिकॉन वाला ब्रश होता है ना, उस पर आपने थोड़ा सा इन्फेंट टूथपेस्ट लगाया और उस टाइम तक बच्चे कॉपी करने लगते हैं. तो आप जब ब्रश कर रहे हो ना, गेट डाउन टू हिज फेस लेवल, अपने टूथपेस्ट पे लगाओ, उसके पे लगाओ, उसको पकड़ाओ और पहले खुद करके दिखाओ. मेरा छोटा भांजा था, हाँ, उसके साथ ये चीज हुआ था. एक वीडियो है हमारी जहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ एंड उसको भी एक ब्रश दे दिया एंड ही इज आल्सो डूइंग द सेम. yes, and they learn like that way. They are not effective in cleaning it. तो उसी टाइम जब आप अपना कर रहे हो, उसके हाथ को पकड़ के पीछे तक दांतों पे रगड़ दीजिए, सिखाओ उसको, सिखाओ. So the kid becomes very comfortable with teeth cleaning. Morning, if it should be a bedtime routine, it should be a morning routine. मैम, आपने कहा कि जो आया होती हैं वो बच्चों के पीछे भाग रही होती है फोन, मतलब लाइक खाना लेके. बट कई बार ना आपने नोटिस किया होगा कि फोन दे दिया जाता है बच्चों को. हाउ गुड और बैड इज दैट? That is harmful. क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि कई बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि उनको जब तक स्क्रीन ना दो ना, वो खाना नहीं खाते. और इसमें फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चों को खाना खिलाना है तो भैया स्क्रीन दे दो, एटलीस्ट उसके पेट में तो चला गया कुछ. हाँ, ये दिस इज रॉन्ग पेरेंटिंग टैक्टिक. जब आप बच्चे को स्क्रीन दे रहे हो तो बच्चा एंटरटेन हो रहा है, तो वो ये सीख रहा है कि जब मैं एंटरटेन होऊंगा मेरा पेट भर जाएगा. Okay. और एट द सेम टाइम द चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व इन सेल्फ फीडिंग, जो नहीं हो रहा है. तीसरी चीज, वी आर
seeing cases, a few cases of where child is addicted to the screen because screen is an addiction. Brain में एक ही addiction center होता है. आप चाहे उसको शुगर खिला दो, आप उसको कोकेन खिला दो, आप उसको निकोटीन खिला दो, या आप स्क्रीन दे दो. ठीक है. So if the child is fighting for the screen, your child is already addicted to the screen. Now, what is happening is the time that the child is spending on the screen, he would have spent in acquiring other skills, जो नहीं acquire की. So, we are seeing cases of virtual autism in kids as young as lack of speech delay, lack of eye contact, and the minute you take the screen away, they are throwing a tantrum in the clinic. And that tantrum throwing is very typical of an autistic kid. So what I'm trying to say is कि under 2 years we please जो regular functions जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो कि बेटा खाना ऐसे खाना है, बेटा सोना ऐसे है, एंटरटेनमेंट के लिए आपने कोई प्रोग्राम पिक किया कि भाई ये एजुकेशनल प्रोग्राम है. आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग इट विद वन ऑफ माई gynecology colleagues recently. She has a grandchild and she says, Sarika, but how do I entertain her? मैंने कहा आपको अगर स्क्रीन पे कोई कहती मैंने एजुकेशनल प्रोग्राम लगाया, एजुकेशनल प्रोग्राम लगा लीजिए, लेकिन एजुकेशनल प्रोग्राम में जो आपको ब्लॉक दिख रहा है वैसा का वैसा ब्लॉक बच्चे के हाथ में होना चाहिए. अगर वो बच्चे के हाथ में नहीं है एंड ही इज नॉट एबल टू टच एंड फील द 5 sensations, he will not learn. मैम कोकोमेलन एंड बेबी शार्क ये सब बहुत पॉपुलर है अमॉन्ग किड्स. अच्छा, मैंने नहीं देखे. हाँ, ये बहुत फेमस है. इस पे तो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज. मतलब मुझे लग रहा है फट जाएगा व्यूज का सेक्शन जो है ना, वो लोग इतना हिट कर रहे हैं. एंड आई थिंक दे आर द चाइल्ड्स आर एडिक्टेड टू इट. जब तक उनको वो स्पेसिफिक साउंड, स्पेसिफिक म्यूजिक उनको नहीं मिलता है ना, ऐसा नहीं कि स्क्रीन टाइम में वो बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, दे नीड वही वाला चीज़. एंड छोटे बच्चे स्टार्टेड सेइंग कि मेरे को बेबी शार्क लगाओ, कोकोमेलन लगाओ, दे नो द चैनल नेम. तो ऑडियोलॉजी इज गुड, उसके साथ कैची म्यूजिक होगा जो बच्चों को कनेक्ट करता है. वही है ना. तो उनको जब तक वो चीज़ नहीं मिलता वो स्टिमुलेट नहीं होता है उनका. इफ दे आर फाइटिंग फॉर इट, दे आर एडिक्टेड टू इट. एनीथिंग दैट इज प्रमोटिंग योर एडिक्शन सेंटर is not recommended. How can we overcome to this addiction? You have to wean them off. You can't suddenly take it away because फिर tantrum throw करेंगे. So you have to wean it off. You have to stop the time. अगर वो 1 घंटा देखता है रोज या 5 घंटे देखता है, तो you will come down. Step 1 is go 4 hours, and the next step is go 3 hours, and then you get down to 30 minutes and switch the program. बच्चों का दिमाग ना बहुत एक्टिव होता है. Yes. उनको थोड़ा भी स्पेस मिलता है ना, दे रन टू द फोन. They are like, they absorb like a sponge. They absorb your emotions. A small child in this room will know हर चीज उसको पता होगी कहाँ पे है. इतना ब्रेन, हाईली ब्रेन कनेक्टेड होता है उनका. And they are learning and they are gathering from their environment. So कोको जो भी कर रहा है, कोकोमेलन जो भी कर रहा है, बेबी शार्क, I hope, and baby shark is shark is something that is considered no, that is a channel name. Yes. अच्छा, आप देखो उसको जाके. लेकिन हाँ, मैं देखती हूँ. आपके वो जो क्लाइंट्स है वो आपको बोलते नहीं ये चीज़ कि मेरे बच्चे कोकोमेलन देख रहे हैं, या वो बस ये बोलते हैं कि फ़ोन देख रहे हैं? फोन नहीं, मतलब कोकोमेलन एंड शार्क. हाँ, मैंने ज़्यादा सुना नहीं है. मे बी माई क्लाइंटेल इज ऑल्सो इन अ डिफरेंट कैटेगरी. No, I don't think so. Everyone is addicted to it. Every child is addicted to it. I need to see it and I need to find out क्या है इसमें. Yeah. Is it an Indian channel? No, or? no. हाँ. ये I guess they are from China. China. Yes. Okay. और उसको डबिंग किया जाता है हर लैंग्वेज में. सेम क्रेज जो हमारा इसका हुआ था, क्या नाम है, Japanese characters है ना, Naruto and animes. Yes. Now you see the effect of that anime. All these countries जहाँ पे protests हो रहे हैं, it is the anime flag that is going there. So these are highly influential programs. I mean, now mobilizing the countries for right or wrong reasons, you need to be careful what you're feeding that kid. बेबी वॉकर्स बच्चों के लिए ठीक होते हैं? Baby walkers as a toy is okay, but not something that the baby should be in for more than half an hour a day. जनरली ना बच्चों को बेबी वॉकर दे दिया जाता है सो दैट दे स्टार्ट लाइक वॉकिंग
No, fast? they don't help walking. They actually, walking में one of the biggest things people are missing is the balancing of the body, truncal balance. Truncal balance जब तक नहीं होगा बच्चा वॉक नहीं करेगा, ठीक है. बेबी वॉकर में क्या हो रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है उसका ट्रंक को, मशीन कर रही है. So the brain doesn't learn how to balance its own trunk. The muscles are not tuned in. So when you are actually standing, walking reflex is present in the baby even at newborn. So teaching them कि एक पैर आगे बढ़ाना है, दूसरा आगे बढ़ाना है, that is already ingrained into these brains already. Newborn, it's a walking reflex is a newborn reflex जो disappear हो जाता है, reappear होता है 1 year पे. So walking teaching is not required. What is required is your cerebellum learning how to balance the trunk. And unless the child is confident about balancing the trunk, they can't take a step forward. Okay. It's a connection between cerebral cortex and cerebellum. What are the list of important vaccination that we must give to our child? So we have hepatitis B, polio drops, diphtheria, tetanus, pertussis vaccine, HIV vaccine, Haemophilus influenza B vaccine, pneumococcal vaccine, rotavirus vaccine. Then comes MMR, typhoid conjugate, chickenpox, hepatitis A. All these vaccines are childhood vaccines which should be given to kids. Newborn को kiss करना उनके लिए ठीक रहता है? Depending on where you're kissing. Hands and feet are okay. Face पे only very close family members should go. The reason is we are all carrying germs in our noses and throats and eyes. You know, आप बाहर जाते हो. You can easily transmit it to newborn. Newborn, जो healthy newborns हैं, they'll still fight it off. The breastfeeding newborns still fight it off. But जो premature babies हैं, they are at disadvantage. They're not getting the full milk. They don't have a well-developed immune system. उन germs को वो नहीं handle कर पाएंगे. बच्चों के बीच obesity इतना ज़्यादा बढ़ना आजकल, why is it happening? एक तो मैंने आपको बताया satiety center, overriding of satiety center. Food is used as an excuse for keeping the child busy. Pizza मंगाएंगे, बाहर से pizza मंगाएंगे. The parents show excitement about outside food. The kid also gets excited about it. High fat content, uncontrolled eating, very high sugar intake, and not enough exercise. So it's a simple caloric intake versus caloric output. And when the caloric intake is high in fat, the child is full. He's possibly missing out on some nutrients. Like fruits नहीं खाया आज के, दही नहीं खाया, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है. See, so you're replacing the nutrients with that excess food, with excitement about high-fat food, and satiety control नहीं है. आपने बच्चे को कभी सिखाया नहीं कि कहाँ पे रोकना है. पेट भर गया, अब रुक जाओ, मत खाओ. अब हफ्ते में एक ही दिन आता है पिज्ज़ा, मैं तो सारे स्लाइसेस आज ही खाऊंगा. पूरे हफ्ते को आज पूरे हफ्ते में जो कैलोरीज आने थे ना, उसने एक बार में ले लिया, वो एक बार में लेनी है. सो देयर इज नो कंट्रोल इन ईटिंग. एंड थिर्डली द एवेन्यूज फॉर exercise, especially in urban setup, are few and far between. Schools maybe the small schools don't have enough playgrounds for these kids. So parents have to actively think. एक्टिवली उनको सोचना है कि मेरे बच्चे को एक्सरसाइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. बच्चे तो आजकल घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं ना. पहले हमारे टाइम में आउटडोर गेम्स ही बस चलते थे. हाँ. और इंडोर जो खेलता था ना, मतलब उसको लेट सपोज कि मैंने आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करे हुए. बचपन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मिड एज की बात कर रहा हूँ. मैं इंडोर गेम्स खेलता था, मैं कैरम खेलता था, मैं चेस खेलता था, मैं लूडो खेलता था. हाँ. ठीक है. बट आजकल के बच्चे देखो ना, वो तो बस स्क्रीन खेल रहे हैं. हाँ, exactly. उनके पास कुछ और नहीं है खेलने के लिए. तो ओबेसिटी मुझे लग रहा है ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ओबेस होते जा रहे हैं वो. हाँ, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज डेफिनेटली इज अ मेजर पार्ट. बॉडी एक्टिव ही नहीं है उनका. और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इन बच्चों को आप बाहर ले जाके दौड़ाओ, they will be lot happier than playing the video games. बस इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. ट्राई तो करो. It is naturally present in kids. They love to run outside in free air. So yes, lack of exercise. मेरे को ध्यान आ रहा है, मतलब मैं आपके एक बार क्लिनिक में था, एंड वो छोटा बच्चा ना, मतलब
जंप करे जा रहा है बेफालतू के, कूदे जा रहा है, हाथ ऐसे पैर वैसे, जंप मार रहा है, मेंढक बन रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। हाँ. तो बच्चों में मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, उसको कहीं ना Yes. कहीं रिलीज करने की जरूरत Yes, है। yes. उससे वो And- ओबेसिटी भी उसकी ठीक होगी और उसका ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़िया होगा। there is another component to free play, creativity. When you let the child out to play freely and they can create those games, it helps with mental health, freedom to create, because otherwise the child lives in a very structured environment. अब क्लास है ये, अब बुक खोलो, अब पढ़ाई शुरू हो रही है, अब आपको लिखना है, अब आपको ये करना है. That free play is great for social interactions. It's great for your creativity. मैंने ये भी देखा है मैम, ये फोन चलाने की वजह से ना एंड आउटडोर एक्टिविटीज ना होने की वजह से ना आजकल बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। Yes. आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि एक बच्चे Yes. का बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। Yes. तो बच्चे जो है ना वो वही सीखेंगे जो एनवायरनमेंट में है और जो पेरेंट्स कर रहे हैं. उनको नहीं पता चल सकता कि मेरे लिए बाहर जाके खेलना अच्छा है. समझ रहे हैं आप? अ चाइल्ड कैन नॉट नो दैट. अ चाइल्ड कैन नॉट नो कि मेरे लिए पिज़्ज़ा खाना गलत है या मेरे अंकल स्मोक करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए. उनको बताना पड़ता है. अब पेरेंट्स अगर रात में 2-2 बजे सो रहे हैं तो बच्चा भी समझता है कि हाँ 2 बजे सोना नॉर्मल है तो हम भी करेंगे. दे आर लाइक स्पंजेस, दे विल फॉलो एनीथिंग द फादर और मदर्स डूइंग. जिनसे वो अटैच्ड हैं. अगर फादर को बहुत गुस्सा आ रहा है और स्ट्रेस्ड है, ही इज़ लर्निंग कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रेस. सो एज अ पेरेंट्स हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मॉनिटर करना और मॉडल करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. आउटडोर एक्टिविटीज़ ना हमारे टाइम जब होती थी, मतलब मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, ये 2-3 जब वी वर इन सेकेंड और थर्ड क्लास, वो खाने में बहुत एक्टिव थी. जैसे हमारा पीटी का टाइम होता था ना, उस टाइम वो क्या करती थी, किसी बहाने से पीटी नहीं करती थी और वो सबके लंच खा जाती थी. ओह गॉड. ऑलमोस्ट, मतलब जिसका उसको पसंद आ गया ना कि हाँ इसका टिफिन आज बढ़िया, तो वो खा जाती थी. और लंच के टाइम में वो क्या करती थी, चम्मच लेके ना वो मिट्टी खोद के टिफिन में भरती थी और वो मिट्टी खाती थी. आपने सुना है ऐसा कुछ? ओह माय गॉड. बच्चों को मिट्टी से इतना क्यों प्यार होता है? मिट्टी देखिए, स्कूल एज किड्स वाले तो नहीं करते हैं. छोटे बच्चे डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन, ओरल एक्सप्लोरेशन के लिए कई बार कर सकते हैं, बट इट्स नॉट कंसिस्टेंट. एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पाइका. अगर बच्चे को मेजर आयरन डेफिशिएंसी है, then we see that the kid will seek out iron from all possible sources of minerals. वो आपके पत्थर को भी लिक करेगा, वो पेंट भी खाएगा, वो एंड दिस इज़ एक्चुअली अ इंडिकेशन कि बच्चे के ब्लड टेस्ट कराओ और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको प्रॉपर वे में करेक्ट करो. तो न्यूट्रिशन वजह हो सकती है. तो एक तो ये है डेफिनेटली nutrition. आयरन डेफिशिएंसी और मिट्टी एंड स्टोन्स का रिलेशन है. Overeating is a sign of stress. This child obviously was never, या तो childhood hunger था, she did not get enough to eat, so the body gets super excited anytime she sees food and she eats it up. Number one. Number two, some kids will eat out of getting rid of the stress from their life. Eating is emotional. We call it emotional eating. It is not a physical or hunger eating. It is emotional eating. So a lot of kids, and stealing definitely points towards some kind of emotional issue this child needs. We need to address. Because बाकियों का खाना खाना is also crossing a line. So it is possible she doesn't know if she's small and young. She needs to be told once or twice. And if she stops, then it is great. But if she doesn't stop, then you really need to go and look out for where is the underlying problem. मैम आपने ना अभी जो ये बोला कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल गैप था शायद फूड को लेके, तभी शायद वो लोगों का टिफ़िन खा रही थी. क्या पेरेंट्स बच्चों को ठीक से समझ जाते हैं, उनके इमोशनल नीड्स को समझ पाते हैं? नहीं, the kids don't come with the written instructions. And there is nothing like perfect parenting. पेरेंट अपनी लेवल पे हर तरह से, आई डू बिलीव एवरी पेरेंट ट्राइज देयर बेस्ट.
चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे एग्जैक्टली वो well-lit family अपनी का हो। तरफ से बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे हैं। अब उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है क्या गलत है। यस, दादियाँ नानियाँ क्यों हेल्पफुल होती हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है उन बच्चों को पालते हुए, गलतियाँ करते हुए, खुद गलतियाँ की हैं, तो वो आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो every parent cannot know this. How do I know this? Is all based on sociological studies that have been done over the years. Uski scientific implications have been studied, and that is what was taught to me when I became a pediatrician. So मैं थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ, but do I understand all of it? No. Possibly not. पॉसिबल ही नहीं है ना इतना समझना। हाँ, there is nothing like perfect parenting. एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि पेन फ्री वैक्सीनेशंस भी आजकल आ गए एंड इसके एड ऑन में मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो वैक्सीनेशन के थ्रू आप लाइक बच्चे को हेल्दी बना सकते हो या दवाई दे सकते हो आप, दूसरा होता है कि आप टैबलेट्स देते हो, एंड थर्ड इज कफ सिरप, है ना? तो आप इन तीनों में से क्या रिकमेंड करते हो? तीनों अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीनेशन, मेडिसिन और कफ सिरप, आप इन तीनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे? नहीं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीनेशन जैसे बच्चे को बीमार नहीं बट होना सेम है, दवाइयाँ तो तीनों हमने- फॉर्म में मिल सकती है ना? नहीं, वैक्सीनेशन तो आपको प्रीएम्प्टिव करना पड़ता है, और हर चीज का वैक्सीनेशन नहीं है। अब जैसे फ्लू का, अब बच्चा बार बार फीवर आ रहा है, हर साल फीवर आ रहा है, तो वो फ्लू वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं। एज फार एज मेडिसिन आर कंसर्न, आप अगर कॉफ सिरप जो है वो essentially for me cough syrup is a symptom controller, ठीक है, it doesn't get to the root of the cough. And अभी तो आपने सुना होगा the cough syrup scandal that is going on. The cough syrups were laden with diethyl glycol. One of the things we've seen is कि cough syrup जो काम करते हैं वो आपके पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। छोटे बेबीज में अप टू 6 months देयर इज क्लियर साइंटिफिक एविडेंस दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि अभी डेवलप ही नहीं हुआ है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस पे कॉफ सिरप्स काम कर सकते हैं। तो यू कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स अप टू 6 months, up to 8 months, definitely. Between 8 months and 5 years, yes, the immune system is partly developing. Yes, if the child is coughing a little bit, and no major issues otherwise, the first question I ask parents is the cough bothering the child or is the cough bothering you? If the cough is bothering the child, then there is a serious underlying cause which a cough syrup cannot treat. मैम, कफ एंड कोल्ड को कब सीरियसली लेना चाहिए, ये समझ नहीं आ पाता है। हाँ, तो कॉफ एंड कोल्ड, वही मैं कह रही हूँ, लुक एट द चाइल्ड, वो रनी नोज के साथ दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, सो रहा है, क्या करना है? रनी नोज आपको खराब लग रही, बच्चे को तो नहीं लग रही ना। विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे बच्चा परेशान है, ही इज रबिंग, ही इज गेटिंग ऑफ हिज टॉय एंड मम्मा आई कांट ब्रीथ, then yes, you look for the cause and treat जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। मोस्ट ऑफ द हेल्दी किड्स जब कोल्ड एंड कॉफ होगा वो 3-4 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। अब एनी कॉफ दैट इज मेकिंग द चाइल्ड अनकंफर्टेबल, लुक फॉर एन अंडरलाइंग कॉज, क्योंकि कॉफ सिर्फ कोल्ड एंड कॉफ से नहीं आता है, वीजिंग से भी आता है, स्टमक सिम्टम्स से भी आता है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन से भी आता है। इन सबको हम डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, हम कॉफ सिरप नहीं देते हैं। सो लुक फॉर द कॉज ऑफ द कॉफ एंड ट्रीट दैट एंड यू विल नेवर नीड टू यूज अ कॉफ सिरप। सो देर इज अ मेजर ड्राइव बाय इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सेइंग 5 साल तक कॉफ सिरप देने की जरूरत ही नहीं है। डजंट मीन कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते। हल्की सी स्नीजिंग, कॉफिंग हो रही है और ज़रूरत है कि नहीं, या सो नहीं पा रहा है रात में, तो ठीक है आपने 1 डोज दे दी, बट मेक श्योर द कॉफ सिरप कम्स फ्रॉम अ डिसेंट ब्रांड एंड SOS हम टर्म यूज करते हैं, एज नीडेड। यू जस्ट गिव 1 dose when the child really needs it and do something that is short acting. क्या होता है कॉफ सिरप्स में अब आजकल हम लॉन्ग एक्टिंग केमिकल्स भी डालने लगे। लॉन्ग एक्टिंग केमिकल्स, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कॉफ सिरप को सिस्टम से जाने में। मोस्ट किड्स, आई मीन
एक जो 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं कॉफ सिरप के. कॉफ जो है ना, ये इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स. और अगर आप कॉफ को उस सप्रेस कर रहे हो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दे के या कॉफ सिरप्स दे के, you may be missing something or you may be heading a child into a complicated stage. Cough is also an indication that the child is becoming uncomfortable with cough, means we need to look deeper. क्योंकि simple sneezing and coughing से बच्चे परेशान नहीं होते. So I usually tell the parent कि बच्चा परेशान है या आप परेशान हो. That is where I get my answer. कि I need to look into it seriously. और नहीं हर जना कॉफ सिरप दे रहा, आप क्यों नहीं देते हो? मैं नहीं देती हूँ कॉफ सिरप, मैं कॉज पे आप लोगों को ये सब चीज़ भी बहुत हैंडल करना पड़ता होगा, क्योंकि हाँ. उनकी रॉन्ग पेरेंटिंग खुद से हुई है. हाँ. उनकी मम्मी और उनकी सासू माँ उनको गलत ट्रेन कर रही हैं, और फिर जब आप अपने लॉजिक देते होगे तो उनको लगता है यार ये तो बेसिक है. हाँ. जैसे काजल की बात कर रहे थे हम लोग, आपने कहा कि काजल गलत है, ठीक है, लेकिन उनकी मम्मी ने, उनके सास ने उसको बताया नहीं काजल लगा के रख. तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा. नहीं, जहाँ पे नज़र का चक्कर है ठीक है, आप आँख पे मत लगाओ, आप फोरहेड पे लगा दो. ऐसे ही मैं कहती हूँ, एक कंपाउंड है शहद, गुड क्वालिटी हनी, हमने अब साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है विल सप्रेस द कॉफ. उसमें कोई दवा नहीं है, ठीक है. हाफ टी स्पून गिवन 3 times a day. दादी नानी का नुस्खा है, शहद और अदरक दे दीजिए. शहद now is proven, अदरक is not proven to control cough. But there you go. दादी नानी भी खुश. कॉफ की अगर रियली बच्चे को जरूरत है तो दे दो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कॉफ सिरप अगर आपके पीडियाट्रिशियन फाइंड्स इट नेसेसरी टू गिव एंड ही हैज रिकमेंडेड, देन प्लीज फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर जो बोल रहा है, हाँ, क्लोज योर आइज एंड डू दैट. यस, ये राइट तरीका है. बिकॉज मोस्ट पीडियाट्रिशियंस विल गिव यू द राइट एडवाइस. हाँ, ऑफ कोर्स. Yes. क्योंकि वो क्यों खराब करेंगे एक बच्चे को इंटेंशनली, exactly. तो आप उनके एक्सपीरियंस को देखिए कि वो कितना मैच्योर हैं, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, कैसा रिजल्ट होने देना, एंड फिर वो जो कह रहे हैं आप आंख बंद करके बिलीव करो. अभी हम लोग हनी की बात कर रहे थे मैम. कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ही इज गिवन दैट हनी एट फर्स्ट. Yes. So is it right? See, under 1 year we recommend that honey should not be given to any child, even under 2 years. बट हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ एक ट्रेंड है. तो उसका एक कारण है, नॉट ऑल हनी बट अबाउट 30% ऑफ हनी में एक कंपाउंड होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो दैट कैन कॉज ब्रेन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज. तो हनी अगर आपने गलती से वो वाला चटा दिया है और चला गया टॉक्सिन बच्चे के अंदर, देयर इज अ रिस्क फॉर दिस इन्फेक्शन टू हैपन. तो हम लोग तो वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट गिविंग हनी अंडर 1 year of age. 1 year. तो डेफिनेटली इवन इफ यू कैन अवॉइड इट. बच्चों के बर्थ के बाद आपने एक बार वैसे कहा हुआ था कि जब तक उसका नेवल गिरे ना तब तक आपको नहीं नहाना चाहिए. वैसे बच्चों की क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए नहाने की? एक बार जब नेवल गिर गया है बच्चे का, सूख गया है, कॉर्ड हेल्दी, मतलब अम्बिलिकल जो स्पॉट है वो हेल्दी दिख रहा है, तब आपको बच्चे को रोज नहलाना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि स्किन पे जो इन्फेक्शंस या जो भी गलत चीज़ें गिरी हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगी. एंड स्किन की हेल्थ के लिए the soap and water and then possibly a little moisturizing after the bath, the kids really enjoy bath. It puts them to sleep actually. Most of the mothers are complaining कि मैम मैं 11 बजे बात दिया, उसके बाद 4 बजे तक सोया ये, और फिर सारी रात जगा है. तो मैं कहती हूँ फिर रात में बात दे दो. लेकिन बात रोज़ देना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ ऑफ द स्किन. मैम एक हैं वो आके सामने चिल्लाते हैं कि अपने स्किन पे कोई साबुन मत लगाओ, कोई ऐसा केमिकल यूज़ मत करो, कोई दही दूध की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी से नहाओ. इज इट गुड? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड. नहीं, आई वोंट एग्री विद दैट, क्योंकि सिंपल वाटर विल नॉट बी एबल टू वॉश अवे सम ऑफ द सोप. क्या है, आप माइल्ड सोप यूज़ करो, आपको बहुत वेराइटी के सोप्स मिल जाएंगे. माइल्ड सोप यूज़ करिए. स्पेशली जो छोटे बेबीज़ के सोप्स होते हैं, दे आर केमिकल फ्री, दे डोंट हैव the things that this guy is trying to protect you against. एथिकली उनको सस्ता भी होना चाहिए, बट उल्टा वो महंगे मिलते हैं.
हाँ वो बात है दूसरी नहीं आजकल तो इंडियन ब्रांड्स आ गए हैं दे आर ऑल प्रिटी वेल टॉलरेटेड एंड सस्ते भी होते हैं मेरे ख्याल से तो इंडियन ब्रांड्स आर ऑल द गुड थिंग इज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया एट द राइट प्राइस और नहाने के बाद जनरली ये चीज़ देखा जाता है कि बच्चों को ना नाक में कान में ऑयल दिया जाता है सो डू यू Really? रिकमेंड या वी हैव सीन लॉट ऑफ देम अच्छा नोज में तो मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ कान में अगर वैक्स है तो आई डू रेकमेंड कपल ऑफ आई ड्रॉप्स बट देन यू नो आपको कैसे पता लगेगा कान में वैक्स इकट्ठा हो रहा है कि नहीं ज़बरदस्ती उसको दिया जाता है कि रोज जबरदस्ती, एक रूटीन हाँ, में हाँ। हम लोगों ने देखा हुआ मैम अपने आसपास ये सब चीज़ें नोज में तो एक्चुअली वी हैव केस रिकॉर्ड्स अगर फोर्सफुली डाला गया है तो वो बच्चे के गलत रास्ते गया है जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी तो वन ऑफ द किड्स एक्चुअली डाइड ऑफ एस्पिरेशन ऑफ दैट सब्सटेंस तो इस चीज़ का तो बहुत ख्याल रखना अगर बच्चा फाइट कर रहा है तो डेफिनेटली नॉट और न्यूबॉर्न तो फाइट नहीं करेगा तो न्यूबॉर्न में तो बिल्कुल ही नहीं रेकमेंड कर सकते और मैम हम लोग एक चीज़ भी देखते हैं ना एक वीडियोस कई बार मैंने देखा है कि नाक के इस साइड से वो पानी डालते हैं और इस साइड से वो क्या कहते हैं हम लोग उसको वो निकलता है हाँ कुछ नाम होता है इसका हाँ, yes. ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर है हाँ सो इज इट सेफ I can't say I would find it safe because what you are putting in the nose is going in your sinuses, filling up your sinuses. नेति कहते हैं शायद इसको है ना हाँ तो देखिए आयुर्वेदिक में मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है एलोपैथी में है एंड वी डोंट रेकमेंड एनी ऑफ दिस इन एलोपैथी if the water is not clean or if the water is not the right osmolality I don't know but people swear by it it may have a role but I don't have jurisdiction over it मैं आपको ये नहीं कह सकती ये गलत है या सही है बच्चों के ना प्राइवेट पार्ट्स में ऑयल डाल के उसको ओपन किया जाता है ओपन मतलब जैसे बॉयज का हाँ बॉयज का उसको पीछे पुल किया जाता yes, है yes, स्किन को अच्छा You ये can advocate this. फोर्सली हाँ देखिए जो प्रिप्यूज होता है जिसको हम प्रिप्यूज कहते हैं फोर स्किन को हम प्रिप्यूज बोलते हैं जो फोर स्किन होती है ना वो बच्चों में बॉयज़ में अंडर 2 years चिपकी हो सकती है ठीक है और आपको बस इतना देखना है कि वो प्रिप्यूज इतनी पीछे जा रही है जितनी पीछे जा रही है वहाँ तक क्लीन करिए और एक्टिंग कई बार क्या होता है कि वो जो होल होता है वो बहुत नैरो हो जाता है क्योंकि वो एडिशंस ज़्यादा हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन हुई डायपर रैश हुआ एडिशंस हो गए तो वो अगर होल बहुत नैरो हो जाएगा तो बच्चा जब यूरिन करेगा तो वो सडनली वहाँ बलूनिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि बलूनिंग का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से यूरिन यूरिथ्रा से आ रहा है वो बाहर वाला होल उससे और छोटा है तो वो प्रेशर से वहाँ बलूनिंग हो रही है नाउ दैट इज़ एन इंडिकेशन वेयर यू शुड कंसिडर प्रॉपर सर्जिकल ओपिनियन एंड पॉसिबली सर्कमसिजन अगर बहुत नैरोइंग है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उसको जेंटली पीछे पुल करें जितनी दूर जाएगा पुश नहीं करना चाहिए जेंटली पीछे एंड ऑयल अगर कुछ ऑयलिंग लगानी है दैट इज़ रिकमेंडेड दैट इज़ ओके बट डोंट फोर्सफुली पुश इट बैक बिकॉज कई बार वो इतनी टाइट होती है कि अगर आपने फोर्सफुली पुश किया तो वो उसके नेक को कंस्ट्रिक्ट कर देगी और आगे का जो वो है ना वो बिल्कुल सूज जाएगा वो भी इमरजेंसी है उसको हम पैराफाइमोसिस कहते हैं उसमें सर्जिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है तो जेंटल एक्शन ओवर फोरस्किन इज़ फाइन क्लीन ऑयल प्लेसमेंट वैसलीन प्लेसमेंट इज़ फाइन बट फोर्सफुल जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स डू दैट बच्चे को पकड़ के पूरा पीछे खींच दिया कि वो खुल गया देखिए दैट इज़ नॉट रेकमेंडेड एक कम्युनिटी में ना मतलब मैं नाम नहीं बोलूँगा यहाँ पे बट उनमें ना वो सेक्शन स्किन का काट दिया जाता है circumcision yes Yeah, so- हाँ that is a definite procedure इसको हम and circumcision that is बोलते हैं also done by some bamboo stick you know that are you aware of it नहीं bamboo stick I don't know yeah उनको you can't like operate blade वगैरह से नहीं होता है वो उनको बैम्बू का एक पार्ट होता है उसको शार्प करके ना they cut it with it ooh that's painful एंड फिर तो वो अच्छा परेशानी रहता है हम लोगों ने देखा हुआ अपने आसपास ये चीज़ें अच्छा। उन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ हाँ तो अब तो ट्रेंड ऐसा हो रहा है ग्रेजुअली सेट कि दे गो टू द हॉस्पिटल yes they अच्छे should से they should डॉक्टर go के to- ऑब्जर्वेशन में ये किया जाता है so जैसे some religions में
ये रिलीजियस प्रोसेस है एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दे शुड पे अटेंशन टू इज कि अगर गलत काट दिया तो यूरिन में नहीं, यूरिनरी यूरिथ्रल डैमेज इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्कमसिजन इवन इन द बेस्ट ऑफ द हैंड्स। बैम्बू वाला तो मेरे गले नीचे नहीं उतर रहा, देखे मेरे को खांसी आ गई सुन के। ओके, डायपर सेफ है बच्चों के लिए? यस, डायपर जो आजकल आ रहे हैं ये इनके अंदर जेल मटेरियल होता है एंड जेल मटेरियल का पर्पस क्या होता है, एनी काइंड ऑफ वेटनेस ऑन द टॉप ऑफ द डायपर गेट्स सक्ड इन, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल ड्राई रहती है, द चाइल्ड स्किन इज नॉट इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द यूरिन और द स्टूल, लिक्विड स्टूल दैट ही इज डन, एंड ऑब्वियसली लीक प्रूफ होता है, तो सारे कपड़े गीले नहीं होते हैं, गंदे नहीं होते हैं। डायपर आई स्ट्रांगली, एक ज़माना था जब हमारे पास जेल मटेरियल नहीं होता था, दिस इज़ लाइक 20 years ago when I was in US, they were using a lot of cotton. And gel material नहीं होता था, and I can't tell you how much diaper rash daily clinic में there were 3 or 4 cases of diaper rash which we were expert in treating. आजकल I see babies all the time, I don't see diaper rashes. Okay. I sometimes So do technology has see evolved. that technology really works, and I do see some rashes, but वो सारा मिल्क की वजह से पेरिएनल रीजन में ज़्यादा दिखता है, लेकिन जो ट्रू केमिकल डर्मेटाइटिस डायपर से आता था वो आजकल नहीं दिखता है। डायपर्स आर सेफ, they should be used. Good quality diapers are available in India now. Some parents don't believe in diaper. Hey, who cares? आप normal कपड़े पहनाओ, the child needs to be, once the child is potty trained, you don't need to be worried about. हाँ, तब तो चलेगा। हाँ। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन कर देना चाहिए, पॉटी एंड सुसु ट्रेन कर देना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप नहीं कर सकते। न्यूरोलॉजिकली बच्चे 18 months तक, 18 years नहीं, 18 months तक न्यूरोलॉजिकली रेडी नहीं होते। Around about 17 to 19 months you should start looking for signs of potty training. तभी करना चाहिए। क्या होता है, अगर आपने 9 महीने पे अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर दिया है तो इस बच्चे का स्पाइनल रिफ्लक्स हुआ है। तो ये रिफ्लेक्स स्पाइनल लेवल पे है, ये न्यूरोलॉजिकली सेंट्रली प्लेस्ड नहीं है। तो इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे स्टार्ट अपीयरिंग एट 18 months, एंड दैट इज़ व्हेन आपने जो 9 महीने पे पॉटी ट्रेनिंग की थी वो बच्चा भूल जाएगा। And a lot of constipation, what we call functional constipation these days, is because of bad potty training. Okay, तो आप ये कहते हो कि 15 months से पहले बच्चों को पॉटी ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? ना, आपको पहले साइंस देखना है, बच्चे में साइंस आ गए हैं न्यूरोलॉजिकली कि नहीं, और अगर नहीं आए हैं तो यू शुड नॉट बी पॉटी ट्रेनिंग। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, एक और चीज़, बच्चों के ना निपल्स को प्रेस करके ना वहाँ से मिल्क निकाला जाता है। अगर बहुत टेंस है न्यूबॉर्न का तो निकाल सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नीड इट। ओके, हाँ, मिल्क होता भी नहीं है उसमें। जैसे न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, न्यूबॉर्न्स में सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि मैटरनल हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में इन यूट्रो हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट बर्ड्स के जो वो होते हैं ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज हार्मोन्स दे में एक्चुअली स्टार्ट टू इंक्रीज इन साइज, एंड जब विड्रॉल होगा तो प्रोलैक्टिन की वजह से वहाँ पे मिल्क आ सकता है। सो समटाइम्स यू मे सी what in US we used to call it witch's milk. Okay. And this milk obviously as the baby comes out, effect of hormone goes away and the milk dries out. Most of the time अपने आप dry out हो जाता है। लेकिन sometimes the babies are born with really swollen breasts, and it seems like every time you're touching the baby there that he's wincing or crying. That's when we say gentle extraction of few drops to just release the pressure is adequate. And this happens both in male and female? Yes, yes, both males and females. बच्चों के ना मुंडन होते हैं। हाँ। Is it good for skin and hairs? I don't think इस पे कोई स्टडी की गई है। लोगों का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। बाल हटा दो तो अच्छे घने बाल आएंगे। हाँ हाँ। तो हमें करना चाहिए बच्चों के साथ ये दुष्कर्म?
दुष्कर्म बच्चे को तो पता ही नहीं चलता है। मैम पता चलता है उनको। चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा छोटा भांजा हाँ। क्या था ना कि मैंने एक बार बियर्ड ट्रिम करा ली, ठीक हाँ। है, मैं 0 पे आ गया, एंड यू वोंट बिलीव, जब तक मेरे बियर्ड्स वापस नहीं आए वो मेरी गोद में नहीं आया। अच्छा, ओके। और ये मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं, वो तो देखिए आपको देख सकता हाँ। है ना, अपने बालों के बारे में बच्चे को क्या पता ठीक है, चलेगा। मैं आपको बताता हूँ। टाइसन है ये। हाँ ये इसका जब आप ट्रिम करा दोगे ना, जब आप इनके बाल मुड़वा दोगे, ये बच्चा डरा हुआ सा रहता है, इज नॉट फीलिंग गुड, इसको अजीब सा लग रहा होता है, ये सैड हो जाता है। नहीं, देखिए ये डॉग्स के साथ भी है। नहीं, डॉग्स के लिए स्किन हेयर इज अ फर कोट इज प्रोटेक्टिव ऑफ द स्किन। इनकी जो स्किन होती है ना, दिस वेरी सेंसिटिव, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हेयर। ह्यूमंस में इतना नहीं है। बच्चों का जो मुंडन है ना, आप कह रहे हो कि अगर मुंडन कराते हैं तो बाल और थिक निकलते हैं। I don't ये know. मिथ भी हो सकता है, मैंने सुना है, तो आई एम आस्किंग यू। I don't know that is true or not. या But genetic- हाँ, cleanliness ज़्यादा हो जाती है। This I definitely see कि कई बार बालों में ना प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई, बच्चे ने करने नहीं दिया, वॉट एवर, सॉफ्ट स्पॉट मदर ने रब नहीं किया, वॉट एवर, एक बार आपने उसको बाल हटवा दिए तो आप क्लीनिंग प्रॉपरली कर रहे हो। लेकिन मोस्ट बेबीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो दे डोंट डू मुंडन, and you see beautiful hair in some of these countries. It's a diet related, it's more to do with genetics and diet. जेनेटिक्स की बात करें यहाँ पे, तो मुझे एक सवाल याद आया। क्या पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि मैम मेरा बच्चा काला हो गया, काले के लिए कुछ तो नहीं उपाय आते हैं। बताओ, हाउ कैन यू फिक्स इट? आपने कभी ऐसा फेस किया है? वैसे इंटरेस्टिंगली ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस वो अपने नानी दादी से जरूर पूछते हैं, या नानी दादियों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाय काला हो गया मेरा बच्चा। मैं तो कहती हूँ अगर धूप दिखाने से काला हुआ है, विटामिन डी बढ़ गया है, हिज बोन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है सन एलर्जी की, आप देखोगे यंग पीपल की स्किन गेट्स वेरी डैमेज वेरी अर्ली ऑन। वहाँ पे मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि सन से प्रोटेक्ट करिए फेसेस को, हैट लगाइए, और 2-3 साल के बाद बेबी सनस्क्रीन्स लगाने शुरू करिए। वो तो डेफिनेटली हम करते हैं, बिकॉज सन जहाँ पे टैनिंग इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल विद गुड हेल्दी लुकिंग स्किन, you don't need to do it. Vitamin D is the biggest thing that comes from sun and playing outside and sun. But now we are regularly supplementing vitamin D, so we can start to use sun. इतना effective भी नहीं है, pollution is मतलब UV rays आ ही नहीं रही हैं, so बारिश के बाद वाला जो sun होता है ना, उसमें skins बहुत burn होके आती हैं। I get a lot of rashes. और वो रैशेस जब हील होते हैं तो वो वाइट स्पॉट पीछे रह जाता है। तो पेशेंट्स डोंट कम फॉर बर्न, दे कम फॉर द कि ये वाइट दाग हो गए हैं, इसको क्या कैल्शियम की कमी है मैम, ये क्या है वो है। मैं कहती हूँ उसको थोड़े दिन सन में दौड़ा दो, ये सारा प्री पिगमेंट हो जाएगा। बट आई ऑल्सो रिकमेंड देम कि थोड़ा सा स्किन को प्रोटेक्ट करो सन से। वो कहते हैं ना कि मैं ये सुनी सुनाई बातें कह रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। देखो मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मेरा फर्ज है आपसे पूछना, सही गलत को बताना ही आपका काम है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि केसर खाओ तो बच्चा गोरा हो जाएगा, चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा। नहीं, तो आई डोंट थिंक दैट इज ये कितना ट्रू है या कितना फॉल्स है? दिस इज नॉट ट्रू। वी हैव, अच्छा लेट मी पुट इट दिस वे, हमने कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं की हैं जिसमें हमने देखा है कि स्किन की पिगमेंटेशन हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ केसर या बिकॉज ऑफ चाय। जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को चाय पिलाती हैं, क्या उनके अंदर उस फैमिली में कुछ ऐसे भी ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिसमें बच्चे की स्किन सन से ज़्यादा एक्सपोज होती है इसलिए काले हो रहे हैं बच्चे, या स्पोर्ट्स पीपल हैं, या स्किन की केयर मतलब स्किन प्रोटेक्शन इतना नहीं है, या फैमिली हिस्ट्री है इसकी डार्क पिगमेंट की। सो द मेलेटोनिन जो आपकी स्किन को पिगमेंटेशन देता है, सॉरी नॉट मेलेटोनिन, आई एम सॉरी, मेलानिन,
वो आई डोंट थिंक चाय और केसर से इफेक्ट होता है. ओके. तो एक मदर का क्या डाइट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है? जब वो प्रेग्नेंट है शी शुड बी टेकिंग अ बैलेंस डाइट इन द सेंस कि राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन इंटेक. ओके. तो ये जो मोस्ट ऑफ द गायनाकोलॉजिस्ट जब ये लोग प्री नेटल विजिट्स के लिए जाती हैं, मोस्ट ऑफ द गायनाकोलॉजिस्ट या तो साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठी होगी या प्री प्रिपेयर्ड चार्ट्स होंगे दैट दीज गायनाकोलॉजिस्ट आर गिविंग आउट बेस्ड ऑन देयर लैब्स भी होती हैं सबका, आयरन, विटामिन डी सब, बिसाइड्स द प्रेगनेंसी लैब्स सारी चेक होती हैं फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट फीटस. अभी हम लोग सन एक्सपोजर की बात कर रहे थे. किस एज में बच्चों को घर से बाहर निकालना चाहिए या बाहर के एटमॉस्फेयर में आप ले जाना आपके लिए सही है बच्चों के लिए? कभी भी ठीक है. कभी भी ठीक है. हाँ. मतलब पैदा होते आप उसको बाहर लेके जा सकते हो. पैदा होते ही देखिए, आपको अगर आप इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हो बच्चे को, सन एक्सपोजर तो हम न्यूबॉर्न्स का भी करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ट्रीटमेंट्स फॉर जॉन्डिस, माइल्ड जॉन्डिस. हम कहते हैं घर में सन, जहाँ भी सन आ रहा है वहाँ पे बच्चे को एक्सपोज कर दो. सो सन एक्सपोजर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इवन इन न्यूबॉर्न्स. इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड गुड फॉर द स्किन हेल्थ. अब बाहर ले जाने का पॉइंट सिर्फ सन एक्सपोजर नहीं है. नहीं, मैं ट्रैवल के सेंस में भी पूछ रहा था वैसे. ट्रैवल इन द सेंस कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ प्राइवेट कार एट अ सर्टन फॉर अ सर्टन टाइम, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन हो सकता है. अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो या उसमें जा रहे हो, क्या नाम है, ट्रेन में जा रहे हो, तो people exposure and risk of getting infection is very common. Diarrhea and cold and cough and fever, these are very common. छोटे बेबीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. तो अगर आप बच्चे को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर ट्रेन में कोई 4 महीने का बच्चा खेल रहा है, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इट्स अ नेचुरल थिंग, राइट? बच्चों को भी सबके साथ खेलना है और सबको बच्चों के साथ खेलना है. और स्पेशली 6 महीने पे तो वो थोड़े से फिर भी डरने लगते हैं, बट बिटवीन 4 and 6 months लॉट ऑफ किड्स आर एक्चुअली वेरी ट्रस्टिंग और स्ट्रेंजर्स के पास भी चले जाएंगे. अब स्ट्रेंजर को कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है तो गया बच्चे को. मैम, बच्चों को पाउडर लगाना ठीक है? मैंने सुना है कि लंग इन्फेक्शन हो जाता है आगे जाके उनको. ये लंग इन्फेक्शन नहीं, जो बहुत फाइन पाउडर होता है वो बच्चे इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दे आर मोस्टली लाइंग फ्लैट. So we don't recommend using powder in very small babies, especially till 6 months of age. Once the child starts to sit up or be more upright, then small amounts of powder, but still prevent inhalation. Putting powder around the nose and mouth where they would inhale it. और environment में भी जैसे अगर आपने powder दूर से डाला तो वो environment में भी जाता है. They can inhale it. हाँ, वो सब prevent करना. So wherever you're putting it, cover it and put it, and then put the cloth on top of it quickly. So we don't recommend powder in smaller babies. तो आई होप आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है. हाँ, कुछ चीज़ें जो आपने पूछी इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है. I would have never thought of putting it in my videos. My experience, Rishi, I'm very impressed by your focus on quality for the products and the kind of questions that you asked and how you made me comfortable with social media. I am so naive in that area. So, it's credentials. This is testimony to you that you have done a fabulous job making a doctor comfortable, talk to the rest of the world. And I think the skill that is required to do podcasting and get questions opened up for a financier versus an influencer versus a doctor, it's amazing how you do it. So that is the part I'm very impressed, honestly. Advice तो मैं क्या दे सकती हूँ? I just can give you my blessing that may, good. See, I have always relied on good quality, though it may not give you a sudden exposure to a lot of public, but it has built me clienteles over the years who trust me. कहीं भी चले जाएं दुनिया में, they come back to me.
So वो जो solid growth हुई है because of the quality, and your focus I can see is on quality. So I think you will achieve great success in your life, and I hope so. And I hope so. I'm right there behind you. थैंक यू मैम एंड आई होप आप सबने इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा एंड एन्जॉयमेंट के साथ में मैंने लर्निंग कोशिश करी एज अ पेरेंट आप क्या करो क्या ना करो अपने बच्चों के बेटर हेल्थ के लिए बेटर फ्यूचर के लिए थैंक यू ऑडियंस थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस Thank you.